नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड में सुभाष चौधरी हूं। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के 12 सांसदों को निलंबन करने का फरमान क्या आ गया। राज्यसभा में माहौल तनावपूर्ण हो गया है और इसका आज भी उसी तरह का नजारा देखने को मिला। राज्यसभा में एक तरफ राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू अपने निर्णय पर अडिग थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कई प्रकार के नियमों का हवाला देकर उनके ही निर्णय पर सवाल खड़े कर रहे थे। जब तनातनी शुरू हुई और इस मामले को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाने की कोशिश की, तो सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें बोलने का मौका दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा असंवैधानिक है। उन्होंने पिछली परंपराओं का हवाला देते हुए कहा कि जिस सत्र में सांसद गलती करते हैं उसी सत्र में उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले निलंबन की कार्रवाई करने से पहले सांसदों की नेमिंग होनी चाहिए, उसका नाम लिया जाना चाहिए और उसके बावजूद अगर सांसद अपना व्यवहार ठीक नहीं करते हैं, उनका अपीयरेंस एप्रोप्रिएट नहीं होता है, तब जाकर निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सभापति ने इस संबंध में अपनी सफाई भी रखी सदन के सामने और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लगभग 4 घंटे तक कृषि बिल पर बोलने का मौका निर्धारित किया गया था और उसमें बहस की बात भी हुई थी। यह कहना गलत है कि उसमें बहस का समय नहीं दिया गया था या फिर सांसदों की नेमिंग नहीं की गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस प्रकार की परंपरा गलत है। यह सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के सांसदों का गला घोटना चाहता है, उनकी आवाज दबाना चाहता है, इसलिए कि वो सदन में सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करना चाहता है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह परंपरा गलत है और उन्होंने सदन से वॉकआउट किया। आइए मैं सुनवाता हूं कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में क्या कहा। I am grateful to you that you have given me an opportunity to raise the issue under Rule 256. Sir, just I will make a brief statement so that everybody can understand what Rule 256 Statements says. are not allowed. Karge, you make submission. I am making submission. Sir, I wish to raise a very important procedural issue relating to suspension of 12 members of Rajya Sabha for the entire duration of the session. Yesterday, on adoption of motion moved by the Minister of Parliamentary Affairs, the moving of the motion and its adoption is a gross violation of rules of procedure regarding suspension of members provided under Rule 256. At the time the Minister was moving the motion, I sought to raise a point of order under the provisions of Rule 258 of the Rules of Procedure. As per the well-established conventions, every member who seeks to raise a point of order has to be permitted by the chair to raise the point of order. Furthermore, when the leader of opposition is seeking to raise a point of order, they have to be allowed to raise the same. I was, however, not allowed to raise my point of order. Right. This is itself a gross violation of the well-settled, time-honored parliamentary convention. Now coming to the provisions of the suspension of members under provision of sub-rule 1 of Rule 256, before a motion is moved for suspension of any member, the chairman has to first name a member. If he is of the view that a member has disregarded the authority of the chair or abused the rule of the council. Right, Karge ji, I heard you.
No, no, I understood 1 what you minute. want. No, you Sir, can't make I a have to statement. make- You can't I make a have to make- statement. You cannot make Sir, a statement. 1 minute. You 1 can minute. make a point. You can't make a statement. 1 minute. Sir, I Let others sit I down. am quoting this Let others rule. sit down. He is capable of Sir, placing it before the house. sir, 1 minute. No, I Sir, allowed 1 him. minute. Are you going to dictate to me? Nobody is going to dictate. How can Right. we dictate you? Right. Sir, So- the rules of council persistently and willfully obstructing the business of the house. Only after naming of such member, the chairman shall put a question on a motion being made under sub-rule 2 of Rule 256. Hence, the suspension of any member, there are two parameters which have to be adhered to. Firstly, the naming of the members by a chairman is required prior to their suspension. Only thereafter, the motion of suspension of members so named can be moved. More importantly, this procedure is relevant only on the date of occurrence of the alleged disregard or disorderly conduct of a member. Right. However, yesterday, sir, you were I not understood. there. No, please. So I am bringing to your notice 1 minute, Yeah, please. half second. No. Take half a minute. No problem. No, Please tell 1 me. minute. Make the point. Alleged disregard to disorderly conduct of the member. However, yesterday the motion for suspension of members was moved by the Minister of Parliamentary Affairs for their alleged disorderly conduct which took place during the previous session. In the present case, none of the 12 members had been named on that particular day, bringing forward a motion to suspend the members months after the day of occurrence of alleged disorderly conduct Right. is not in order. Right, sir. The Once unprecedented I heard and you. undemocratic I heard you is in a rapt blatant attention. violation of the rules. Right. I Sir, heard you. demand Kharge ji, please. This suspension of 12 members may kindly be revoked. I request you, sir. Please. And no, we came to your house. If you- And, sir, 1 minute. We all members came to your house. We requested you to revoke it, and it has been done selectively. There are some members, nothing to do with this. And this incident happened in last session. How can you take this? जिन 12 सांसदों के निलंबन का फरमान सुनाया गया है उनमें से सबसे अधिक यानी 6 सांसद कांग्रेस पार्टी से हैं और टीएमसी और शिवसेना के 2-2 सांसद हैं, जबकि सीपीआई के और सीपीएम के 1-1 सांसद हैं। हालांकि अगर आप उस वक्त की राज्यसभा का पिक्चर अगर देखेंगे, उसकी प्रोसीडिंग देखेंगे, तो और भी कई ऐसे सांसद थे जो हाउस की टेबल पर, रिपोर्टर्स की टेबल पर चढ़कर डांस कर रहे थे, या फिर उन्होंने अभद्र व्यवहार किया और संसदीय और मर्यादित अपना अपीयरेंस वहां सांसदों ने दिखाया। तो उस प्रोसीडिंग से यह स्पष्ट होता है। ऐसे में जब सदन से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने वॉकआउट कर दिया, तो फिर सभापति एम वेंकैया नायडू के पास अपने निर्णय से संबंधित सफाई देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सदन में 93% ऐसे मेंबर्स हैं जो हाउस को नियमानुसार रन करना चाहते हैं, जो सदन में अपनी क्षेत्र की जनता की समस्याओं को उजागर करना चाहते हैं, रचनात्मक भूमिका अदा करना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो इस सदन को हमेशा डिस्टर्ब करना चाहते हैं और इस तरह का इंटेंशन वो रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें अधिक दिक्कत है तो सदन में अपनी बात रखें या फिर लोगों में जाएं। उन्होंने कहा गो टू पीपुल, वॉक टू हियर, टॉक टू हियर और वॉक टू गो टू पीपुल। उन्होंने इस तरह की बातें कही। उन्होंने यह कहा कि आज यह जारी रहा तो लोगों का विश्वास इस प्रकार की व्यवस्था से
उठ जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जो मूक दर्शक हैं। उनका इशारा स्वयं की ओर था, क्योंकि वो सदन के सभापति हैं और देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। वो जिस तरह से एक आम सांसद, किसी पार्टी का राजनेता पत्रकारों में, मीडिया में जाकर बहस मुहावजा में शामिल हो सकता है और तर्क और कुतर्क कर सकता है, अनर्गल आरोप लगा सकते हैं, उस तरह से देश का उपराष्ट्रपति या फिर सदन के सभापति ऐसा काम नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने सदन में अपनी आज सफाई दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता का यह कहना कि सांसदों की नेमिंग नहीं की गई थी निलंबन की कार्रवाई से पहले गलत है। उन्होंने सदन की पूरी प्रोसीडिंग सदन में आज रखी। उन्होंने कहा कि इस सदन में एक्शन लेने के ऐसे कई मामले, ऐसी कई परंपरा भी है कि जिस सांसद ने सदन में वैसा अभद्र व्यवहार नहीं किया था और सदन के बाहर जाकर अमर्यादित कोई ऐसा काम किया, तब भी उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसी सदन में इस प्रकार की कई उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हमें इंस्टीट्यूशन का रिस्पेक्ट करना चाहिए और सेट गाइडलाइन है, उसके अनुरूप ही हमें आगे चलना चाहिए। सुनिए उपराष्ट्रपति या फिर सदन के सभापति ने आज क्या कहा। Chair can do. Try to understand why I am making this clarification is people are giving wrong information. No discussion on farmers bill. I have quoted the minutes also. 3 hours 46 minutes. 4 minutes was there. Because 4 hours was allocated and members did not choose to speak further. They were satisfied with their speeches. Outcome, it may not be up to their expectation. Then the minister also, very patiently, cogently, he tried to reply. It may not be to the likings of some people. I do agree, in a democracy there will be difference of opinion. You can put forth your point of view, you can criticize, you can even attack the government also, not physically, attack the government also, and then protest also. The other way is going to the people. Going to the people. First place it here in this house and then please go to the people. But I am seeing, instead of going to the people, we are going and giving bite and criticizing people who are silent spectators. I have calculated today, 93% of the members of the house, they want the house to run. This side and this side also. So, but they are silent. The majority is silent and handful of people are violent. So how do you reconcile to this reality? This has to be understood by one and all, because it is happening time and again. Morning I was speaking to somebody from interior. I was saying nowadays there is no interest in seeing TV or hear the debates of either parliament or your house or the other house or even the assemblies. This is the comment being made by general people. I am afraid if we continue this trend, people will lose their faith in the system, which is very harmful to the country and to the system. Yes, protested, you made your point, you walked out, you have got every right to walk out. And I also appeal to the House and some... जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें अकेले कांग्रेस के 6 सांसद शामिल हैं। जो कांग्रेस सांसद इस सत्र में राज्यसभा में लौट नहीं पाएंगे उनमें फूलो देवी, नेताम, छाया वर्मा, आर बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन और अखिलेश प्रताप सिंह हैं। कांग्रेस के इन सांसदों के अलावा सीपीएम के एलमरम करीम, सीपीआई के विनय विश्वम, टीएमसी के शांता छेत्री और डोला सेन, जबकि शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी जो हाल में ही राज्यसभा में पहुंची हैं, और अनिल देसाई को भी राज्यसभा की ओर की कार्रवाई से पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि ये सांसद आज भी मीडिया में लगातार इस प्रकार का बयान देते रहे कि वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमने कोई गलती नहीं की है, हमने जनता की आवाज वहां मुखर की है, यह उनका कहना था। लेकिन दूसरी तरफ सदन के नेता पीयूष गोयल ने भी आज अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ने आज सदन की गरिमा को कम किया है। उन्होंने सांसदों के अभद्र व्यवहार के लिए खेद जताने की बजाय सदन के सभापति के निर्णय पर ही सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया, जो बेहद अप्रासंगिक है और बहुत ही परंपरा से बिल्कुल अलग
हटकर है। उन्होंने कहा कि जो 20-21 दिन लगातार होने वाली घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन में अच्छे वातावरण में लोकसभा और राज्यसभा चले। उनका यह भी कहना था कि दलों के बीच में समन्वय हो, दोनों सदन अच्छी तरह से देश की समस्याओं की चिंता करे, सभी गंभीर विषय पर चर्चा, सार्थक चर्चा हो और मिलकर राष्ट्र का निर्माण हम करें। उन्होंने पीयूष गोयल ने कहा कि सदन में अपने व्यवहार के लिए विपक्ष की ओर से कोई बयान खेद प्रकट नहीं किया जाना, यह विपक्ष के नेता की अगंभीरता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि उनका सभापति पर लगाया हुआ आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए सरकार को मजबूरी में निलंबन का यह प्रस्ताव सामने रखना पड़ा। हालांकि पीयूष गोयल ने यह भी संकेत दिया कि अगर वो सांसद या फिर विपक्ष की ओर से कोई नेता उन सांसदों की ओर से खेद प्रकट करते हैं और सभापति से क्षमा मांगते हैं तो फिर सरकार उन प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार करने को तैयार है। सुनिए आज सदन के नेता पीयूष गोयल ने राज्यसभा में क्या कुछ कहा। मुझे बड़ा खेद है कि आज सुबह जिस प्रकार से हमारे विपक्ष के साथियों ने चेयर के ऊपर एक प्रकार से आरोप लगाने की कोशिश की कि रूल्स परमिट नहीं करते हैं, आपने कैसे 12 माननीय सदस्यों को सस्पेंड किया, और जिस प्रकार से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने सिर्फ चेयर की नहीं पूरे सदन की एक प्रकार से गरिमा को कम किया, क्योंकि निर्णय तो सदन का था कि 12 एमपीज को सस्पेंड करना चाहिए, और ये निर्णय भी एक प्रकार से 20-21 दिन तक रोज की घटनाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। आज सुबह माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कोई खेद नहीं प्रकट किया, कोई विपक्ष की तरफ से कोई बयान भी नहीं दिया कि वो इस बात से दुखी हैं कि किस प्रकार का व्यवहार सदन में हुआ। उल्टे हम बाहर जाते हैं तो देखने को मिलता है कि विपक्ष के कुछ नेता बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं आपके उच्च चेयर के ऊपर, हमारे सदन के ऊपर, और मुझे लगता है कि जरूरी है कि रिकॉर्ड पे रहे कि किस प्रकार से ये विषय पूरी तरीके से जरूरी था और एक प्रकार से बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करते 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 11 अगस्त की घटनाओं पे आने के बाद इस पे क्यों कार्रवाई करना आवश्यक था। सदन के नेता पीयूष गोयल के बयान आने के बाद माहौल कुछ शांत सा लगा और इस प्रकार की संभावना बनती दिखने लगी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संभव है कुछ बातचीत हो और इस मुद्दे को लेकर जो ये विवाद खड़ा हुआ है इसको लेकर कोई रास्ता निकल जाए। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि बुधवार को सदन के नेता और सभापति एम वेंकैया नायडू और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में संभव है इस बात को लेकर, इस विवाद को हल करने को लेकर कोई मंत्रणा हो सकती है और इस पर सहमति बन सकती है और सदन फिर सुचारू रूप से चलने लगे। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही और हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हमेशा इसी तरह से बिना मिर्च मसाले के, बिना लाग लपेट के हम सभी इंफॉर्मेटिव खबरों को आपके सामने लाते रहेंगे।